Hi guys, I'm Harleen from Officer's Mind. I'm here with some important tips for your CDS exam. अब एक दिन रह गया है. I'll tell you कि आप कौन से important topics रिवाइज कर सकते हो और 21st को आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है. So let's get started. सबसे पहले आपके इंग्लिश के सेक्शन में what do you need to revise? Your grammar rules. इसमें आप tenses, reported speech, active passive voice, ये रिवाइज करिए. इन पार्ट्स ऑफ स्पीच यू शुड रिवाइज व्हाट आर नाउन्स, प्रोनाउंस, verbs, adjectives, adverbs, then all your prepositions, your determiners, apart from the parts of speech. इसके आप सब कैटेगरीज भी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल what type of noun is it, what type of pronoun is it, what type of verb is it. So direct questions can be seen from here. So revising this can help you a lot. Then है आपके vocabulary words. इसमें we talk about your synonyms, your antonyms, we talk about your phrasal verbs, we talk about your idioms, about your phrases. So आप questions देखो इसके and you must have revised very properly by now. So you find out with respect to previous year question papers कि किस type के questions हैं. You revise those kinds of questions. Previous year question paper is very important here. आप अपने सामने एक previous year question paper रखो and now have a look at what have you missed out. अगर आपको लगता है that you need to work a little on sentence rearrangement or para jumbles, then you devise a strategy for yourself now कि आप 21st को कैसे attempt करोगे. इसके अलावा आपने जितने भी mock test अभी तक solve करे हैं, you know what your mistakes are. Have a look at all the mistakes you have committed and see what improvisation you will be doing in your paper while attempting there. अगर आपको लगता है कि आपने बहुत नेगेटिव्स करे हैं अब तक, तो यू शुड नो कि अब आपको कितने ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि आपको वो प्रॉपरली नहीं आते हैं बट वो नेगेटिव मार्क्स की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. ऑल ऑफ अस हैव अ स्ट्रॉन्ग टॉपिक. फॉर सम इट इज़ वोकेबुलरी, फॉर सम इट इज़ ग्रामर. सो नाउ इज़ द टाइम टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट कि आपकी बेसिक एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या होगी. नाउ फॉर जनरल नॉलेज सेक्शन. इसमें अगर हम पॉलिटी की बात करें, सो सर्टेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक योर फंडामेंटल राइट्स, योर फंडामेंटल ड्यूटीज़, योर इंटायर पार्लियामेंट चैप्टर, योर DPSPs, टॉपिक्स लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर. अगर कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं तो रिगार्डिंग दैट, इसका भी आपको क्लियर आइडिया PYQs से मिलेगा. That which topic do you need to revise at the end moment. But these are the most important topics. Current affairs में से भी important ones. You have done so many current affairs by now and you know which ones are the most likely to be asked. जहाँ पे हमारी कोई दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस हैं, कोई एक्सरसाइजेस हैं, हमारी कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स हैं, इंडिया की प्रेसिडेंसी के बारे में, वेयर इंडिया हैज़ बीन अ होस्ट टू एनीथिंग, आर स्पेस रिलेटेड अचीवमेंट्स, ऑल दोज मिशंस. सो यू नो विच वंस हैव टू बी रिवाइज्ड. सो इसको आप इफ़ यूल रीड इट वंस अगेन, थिंग्स विल रजिस्टर इन योर माइंड. Then with respect to geography, rivers, mountains, deserts, oceans, map based analysis, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है, इक्वेटर कौन सी कंट्री से पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास करता है, प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास करता है. देन क्वेश्चंस लाइक विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय with respect to area, which is the smallest state of India with respect to area. Then hottest place, coldest place, coastal cities, name of the coastal cities,
मैप बेस्ड क्वेश्चंस कैसे, गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, रीअरेंजमेंट ऑफ रिवर्स और रीअरेंजमेंट ऑफ माउंटेन रेंजेस. सो ये आप कहाँ से करोगे, यू विल पिक अप मैप्स with respect to mountains or deserts or rivers and you'll analyze it now. अगर न्यूज़ के अंदर कोई इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी रही है, विच कंट्रीज आर नेबर्स ऑफ दैट वाटर बॉडी. विद रिस्पेक्ट टू साइंस, आपके साइंस के फॉर्मूले, periodic table is very important with respect to chemistry, the trends that you have on a periodic table, exceptions that you have in your chemistry again, examples जैसे अगर हम plant animal kingdom की बात करें, there are so many examples that you have. Example, which of these belong to the category of fibrous root system or tap root system. Questions like which of these is known as the suicidal bag of a cell. So your plant cell and animal cell is very important again. इनमें से तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. एंड साइंस इज दैट वंस फेयर जहाँ से जनरली प्रिडिक्टेबल पेपर आता है एंड यू गेट टू सी अराउंड 30 क्वेश्चंस ईजिली इन साइंस. सो कवरिंग दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइजिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करो, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं लाइक इन्फ्लेशन, योर कैश रिजर्व रेशियो, your repo rate, your reverse repo rate. So these basic terms you have to do. History may, now it is your choice. Which topics do you want to revise? If you want to pick up modern history, उसके आप keynote topics कौन से revise करना चाहते हैं? Because you can't be revising the entire history in one day. International organizations, very important again. For example, UNESCO, Quad. आपको पता होना चाहिए कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं. यूनेस्को के अंदर तो बहुत कंट्रीज़ हैं. क्वाड के कौन से नेशंस हैं. देन आसियान, देयर हेडक्वार्टर्स, इनकी लास्ट मीटिंग कब हुई है या फिर इनकी नेक्स्ट मीटिंग कहाँ स्केड्यूल्ड है, व्हाट इज़ द वेन्यू. सो दीज थिंग्स. आपके डिफेंस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑल द रिसेंट डेवलपमेंट्स that have taken place with respect to Army, Air Force and Navy and your Coast Guard as well, or any development made by DRDO. So these are the things that you need to have a look at one day prior to your exam. अब maths के केस में भी going over the formulas is very very important. कुछ ऐसे conceptual questions होते हैं that you need to look over once again उसका concept समझने के लिए. So certain questions that you have retained for yourself to have a look at the last moment, please go over those questions. कुछ examples होते हैं that you need to revise, you need to have a look at, because उससे similar काफ़ी questions आपको exam में भी देखने को मिलते हैं. So where do you pick up the source from? It is from your previous year question papers. You have a glance at your previous year question papers and see कि आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है जो अभी रिवाइज करने की ज़रूरत है. Now don't spend a lot of time in revising only your strong points. अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई आपके weak points हैं but it is easily doable at the last moment, then you pick that up. Otherwise, if you feel that you need to hone your strong points, then you just revise those questions. इस मोमेंट पे आप कोई नया सिलेबस नहीं करोगे. So that's very important. Last day you will just revise whatever you have already done. Nothing new will be done. बस आपके जो प्रीवियस डाउट्स हैं जो आपने पहले कर लिए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करे, आपने अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करे, तो उसमें जो आपके डाउट्स थे विच यू हैव नॉट येट क्लियर्ड, वो अपना क्लियर करो, पर कुछ नया नहीं करोगे आप. अब फॉर्मूले आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स. कोई आपके टेबल्स हैं रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, एंगल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट. Now the most important thing, what are the tips to attempt your paper? So आपकी तैयारी सारी एक जगह रह जाती है, but how you attempt your paper really makes a lot of difference.
तो सबसे पहले आपकी स्पीड पूरे पेपर में, स्पेशली इन मैथ्स एंड इन इंग्लिश, इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। जीके में आपकी स्पीड जनरली ठीक रहती है, इंग्लिश और मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्टिंग से ही राइट सिंस द फर्स्ट मिनट पिकअप पेस। सबसे पहले आप सारे क्वेश्चंस करो। जैसे आपने फर्स्ट से स्टार्ट किया, यू डू द फर्स्ट क्वेश्चन, यू डोंट नो द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, यू मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, पूरा करो, देन यू कम बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन। अब देखो कि आपने कौन से क्वेश्चन बीच में से छोड़े हैं। यू रिपीट दिस साइकिल 3-4 टाइम्स टिल यू फील दैट नाउ यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस दैट यू वांटेड टू अटेम्प्ट। टाइम मैनेजमेंट, लाइक आई टोल्ड यू, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग से ही देख के चलो कि आपने कितना टाइम कौन से सेक्शन पे यूटिलाइज़ करना है। लेट्स से कि पैरा जंबल्स में यू हैव डिसाइडेड कि 15 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, इवन 15 इज़ अ लॉट। सो यू नीड टू नो कि सपोज़ ग्रामर मुझे बहुत अच्छे से आती है, दैट आई कैन डू इन 5 to 10 मिनट्स। मुझे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आते हैं, दैट ऑल्सो आई कैन डू वेरी क्विकली। अब मुझे क्लोज टेस्ट पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है, या मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है, पैरा जंबल्स पे करना है, ये कैसे पता चलेगा आपको? आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, और आपने जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं वो देखो, और देखो कि उनमें आपने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कौन से सेक्शन में करा था। सो दिस इज़ वाई डूइंग दीज 2 थिंग्स वॉज इम्पॉर्टेंट। Very very important thing, reading all the questions very very carefully. Sometimes you tend to miss a word like not. Which of the following is not correct? Even though ये bold में होता है, capital में होता है, you still tend to miss it, and you realize it after you have marked your answer in your OMR sheet. So questions read करना बहुत important है। सारे options देखो। Sometimes you like look at the first option, it feels correct to you and you mark it. फिर बाद में realize होता है कि नहीं, फोर्थ ऑप्शन भी सिमिलर लग रहा था। सो यू नीड टू हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। डू नॉट ओवर अटेम्प्ट। आपको पता है दैट देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इन ऑल द 3 पेपर्स। तो आप पहले सारे वो क्वेश्चंस करो जिसके बारे में आप 100% श्योर शॉट हो। देन यू गो टू दोज क्वेश्चंस जिसमें आपको 50-50 चांसेस हैं करने के। जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, यू विल नॉट टच दोज क्वेश्चंस। एंड ये 50-50 वाले क्वेश्चंस में भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 10 तुक्के मारते हो तो आपके जनरली 10 में से कितने गलत होते हैं, कितने सही होते हैं। हैव अ लुक एट द PYQs, हैव अ लुक एट द मॉक टेस्ट, एंड यू फाइंड आउट कि आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हो फ्लूक क्वेश्चंस, कि आपके वो एक्चुअल कट ऑफ को अफेक्ट नहीं करता है। लेट्स से यू वांट टू हैव अ मिनिमम स्कोर ऑफ 45 इन जीके, सो यू शुड नो कि अगर आप 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हो, उसमें से अगर 8 भी ठीक हो जाते हैं, 2 गलत होते हैं, देन देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दैट। बट इफ़ यू अटेम्प्ट दीज 10 क्वेश्चंस एंड आपके सारे गलत हो जाते हैं, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर स्कोर ऑफ 45 मार्क्स, वॉट एवर बेसिक क्राइटेरिया यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ। समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज़, एंजाइटी के चक्कर में हम सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखते ही नहीं हैं। वी सी दैट दिस इज़ द फर्स्ट पेज, इसमें तो सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मुझे तो हिस्ट्री आती नहीं, आई हैव नॉट डन हिस्ट्री। बट देन यू टेंड टू मिस आउट दैट वन जोग्राफी क्वेश्चन दैट वाज देयर ऑन दैट पेज, बट यू स्किप्ड इट। तो रीड करना पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूरा पेपर 1-2 मिनट लगा के देखो कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस हैं। डोंट मिस आउट ऑन क्वेश्चंस। OMR शीट आपने अपनी बहुत ध्यान से भरनी है बाय विद अ ब्लैक ball pen only. Carry at least two black ball pens with you, and you have to fill the bubble very carefully. अपना रोल नंबर भी आपने बहुत ध्यान से फिल करना है। Everything that you're filling, be very conscious while doing that. सारे के सारे क्वेश्चंस डू नॉट लीव इट फॉर द लास्ट मोमेंट कि मैं पहले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगा और करूँगी, एंड देन आई एम गोइंग टू फिल माई OMR शीट। You will fall short of time later and under anxiety if you tend to miss out on one question. आपका पूरा पैटर्न ख़राब हो सकता है। तो आप एक सेक्शन करो या एक पेज करो, उस पेज के क्वेश्चंस मार्क कर दो, दैट इज़ द राइट अप्रोच। Ensure that you are carrying all your essentials, whether it is your admit card, whether it is your ID card.
In case of requirement, also carry an additional photograph with you. Carry your water bottle, carry your pens. और अगर आप ट्रैवल करके जा रहे हो टू योर सेंटर, ensure that आप एक दिन पहले Saturday evening you go and check out your exam center so that Sunday morning you are not in this state of anxiety. Sometimes what happens is कि एक सिटी में एक जैसे नेम के बहुत सेंटर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे आर गवर्नमेंट स्कूल्स, सो देयर कैन बी अ कन्फ्यूजन एट टाइम्स. कभी कभी सेकेंडरी स्कूल एक जगह होता है, मिडिल स्कूल कहीं और होता है, एंड यू थिंक दैट इट इज़ द सेम. So you go and you check out your center one day prior to your paper. If you are a localite and you are very well aware, then there is not much requirement of doing that. But अगर at least आप travel कर रहे हो, so do that. Or travel, don't keep your traveling part for Sunday morning. Reach your destination one day prior. Exam से एक दिन पहले it is very very crucial for you to have good sleep. Why? Because अगर आपकी नींद ही नहीं पूरी होगी, you might have studied a lot, but आपकी retention power बहुत decrease हो जाएगी in your paper. Your concentration power will decrease. आपको ऐसा लगेगा कि this question I have done somewhere, this concept I have done somewhere, but you won't be able to answer it. So your sleep is very important, at least 7 hours of sleep before your paper. You should be very fresh before your paper. Now overall, you need to take care of your concentration there. Don't divert your mind. Sometimes ऐसे भी होगा that while you are attempting an important question of English, the examiner comes to you, asks you to sign some document there where you have your name, signature, attendance sheet that they have. So उस time पे take a pause and restart that question. So ताकि आपकी concentration दोबारा से regain हो जाए. Be alert while you are solving your paper. And believe in yourself. You have worked so hard for so long that one day you just have to put in a little more efforts, and you are certainly going to remember all the questions that you have done. Believe in yourself. You are definitely going to do very well in your exam. I wish you all the best for the same. If you have any doubts of any kind, you may contact us through our Instagram channel, or you may drop a text on our WhatsApp number. All the best.